Good morning class 3 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you EVS chapter 7, that is saying without speaking. So before starting the explanation, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please subscribe it and don't forget to like and share. So let's start with the explanation of this chapter. So today we are going to do chapter number 7, saying without speaking. I am also going to explain you this chapter in Hindi along with your fill in the blanks, true, false and question answers. So let's begin. But before beginning the explanation of this chapter, I would like to share some basic things that you need to know in this chapter. So बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना बोले कुछ कहना. अब आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे, बिना बोले हम कैसे कुछ कह सकते हैं? यस, आप बिल्कुल कह सकते हैं बिना बोले. वो कैसे? सोचो सोचो. ओके, मैं बताती हूँ. Whenever you are in the class, you are having a teacher in your class. जब भी आप अपनी क्लास में होते हैं, जब टीचर आपके सामने होती है, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी दोस्तों को इशारे में बातें करते हैं. आप अपने दोस्तों से करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दैट इज़ सेइंग विदाउट स्पीकिंग. आप उस टाइम बोलते थोड़ी ना है, आप लोग इशारे करते हैं. दैट इज़ सेइंग विदाउट स्पीकिंग. एंड वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. सी स्टूडेंट्स, you have seen many characters in TV shows as well as anywhere else. So this type of characters you have seen, they don't speak anything. Okay, they just paint in their face and act their activities, and they speak without saying. वो बिना बोले आपको अपनी एक्टिंग के द्वारा समझा देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. अंडरस्टूड? एंड देयर आर मैनी पीपल, दोज हु कांट स्पीक, दोज हु कांट हियर, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते. ऐसे काफ़ी बच्चे, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो एक्टिंग के द्वारा अपनी बात कहते हैं. सो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे या जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो कैसे अपनी बातें कहते हैं. सो लेट मी शो यू द साइंस दैट दे यूज. सी स्टूडेंट्स, दिस आर द साइंस दैट द डेफ और ब्लाइंड पीपल यूज टू स्पीक विदाउट सेइंग. ये वो साइंस है जो लोग देख नहीं सकते, दैट इज़ ब्लाइंड. जो देख नहीं सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड. और जो नहीं सुन सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफ. DEAF, डेफ. ओके, सो ये वो साइंस है जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लोग यूज़ करते हैं. सो देखिए आप बच्चों, ए. सो यू आर हैविंग दिस ए. वो लोग ए कैसे कहते हैं? B. This is the sign of B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. So students, these are the signs. Let's come to another page. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Y, Z. So students, these are the signs that the people use who are blind, deaf or those who can't speak.
Okay, so you can also practice this at home so that whenever you get a chance to meet any this kind of people, you can speak in front of them without saying. Interesting? लगा ना बहुत इंटरेस्टिंग? So practice this science at home. ठीक है बच्चों, ये साइंस जो है वो आप देख के इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ताकि जब भी आपको ऐसे लोगों से मिलने का चांस मिले, मौका मिले, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दिस साइंस आर वेरी यूजफुल. ये बहुत यूजफुल है. सो यू कैन प्रैक्टिस एट होम वेरी नाइसली एंड आई होप आप सभी प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. So I have shown you the basic things in this chapter that you have to practice at home. Now let's start with the explanation of this chapter. Saying without speaking. बिना कहे कुछ बोलना. So let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. Okay, students, you are not in the class, but if you were in the class, obviously I should do this activity in the class only. But still, no problem. You are having at home, so you can practice at home. If you are having any friends or you are having any brothers, sisters, siblings, cousins, you can do with them. Your teacher will give each group a piece of paper with the situation written on it. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चलो आज मैं एक गेम जो है वो खिलाती हूँ. आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है. ओके, 7 नहीं तो आप 3-4 पार्ट्स में भी आप डिवाइड हो सकते हैं सभी बच्चे. और उसमें अगर सिचुएशन दी जाए, कोई भी सिचुएशन, ठीक है, तो आपको उस शीट में जो लिखा हुआ होगा आपको वो एक्टिंग करके बतानी है. एक्टिंग करके आपको सामने वाली जो पार्टी है या सामने वाली जो टीम है उसको आपको ये समझाना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. बट रिमेंबर, आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना है. ओके, सो जस्ट लॉक योर लिप्स. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Okay, so आपकी मम्मी या आपके पापा जो भी है आपको कुछ लिख के देंगे चिट में, आपको वो एक्ट बिना बोले करना है. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना मुंह तो खोलना ही नहीं है. You have to express it only by face expressions and by some actions. ठीक है, आप अपने बॉडी से एक्शंस कर सकते हैं, आप अपने फेस से एक्शंस कर सकते हैं, बट आप मुंह नहीं खोल सकते, आप बोल नहीं सकते कुछ भी. When all the groups are ready with their acts, they have to perform one by one in front of other groups. The other will have to guess what is being acted out. ठीक है, जब आप रेडी हो जाओगे तो आप जो सामने वाला ग्रुप है उसके सामने परफॉर्म करोगे और वो ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है ना, जब आप अपने फ्रेंड्स से इशारेबाजी में बातें करते हो तो फ्रेंड समझता ही नहीं है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. फिर वो आपसे पूछता है कि अरे आप क्या बोल रहे थे मुझे. सो आपको ऐसे एक्ट करना है कि सामने वाला पहचान सके या पहचान ना सके. How did you like this game? So, ये बताओ क्या आपको ये गेम अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ट्राई एट होम. ठीक है, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट इन स्कूल, वी आर इन होम. सो प्लीज़ प्रैक्टिस इन होम. Did you find it difficult to act without speaking? क्या आपको बिना बोले एक्ट करना मुश्किल लगेगा? थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है. Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. Okay, next page में हमें जो children दिए हुए हैं वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं आपस में, हम देखेंगे वो भी एक्शंस के थ्रू. Have you ever seen anyone talking through actions?
क्या आपने किसी को देखा है जो एक्शंस से बातें करते हैं या एक्शंस से बोलते हैं? यस, ऑब्वियसली जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लोग एक्शंस के द्वारा ही बातें करते हैं या सुन नहीं सकते। When do people need to talk like this? लोगों को ऐसे बोलने की कब ज़रूरत पड़ती है? तो ऑब्वियसली जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है और वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। Now see students, these two children are there and they are just acting like that। जो मैंने साइंस आपको पहले दिखाए थे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। डिड यू रिमेंबर? याद आया? कुछ नहीं आया तो फिर से आप देख लो, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है सब कुछ। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। और जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं एक्शंस के थ्रू। ठीक है, एक्शंस। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। और हाँ, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो आपके होठों को पढ़ लेते हैं। लिप्स के जो एक्शंस या मूवमेंट्स जो आपके होते हैं, जो भी आप बोलते हैं ना, वो समझ लेते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी होती है। सो वो लिप्स के मूवमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। सब लोग जो है वो सब चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। सम ऑफ अस सिंग वेल। हम में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोएट्री बहुत अच्छी लिखते हैं। सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ पे तो बहुत एकदम तेज़ी से, आसानी से चढ़ जाते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भागते तेज़ हैं। सम कैन ड्रॉ वेल। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइंग अच्छी बहुत करते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा गा लेते हैं, वो भी अच्छी सी ट्यून में। ओके, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम सभी बहुत स्पेशल हैं अपनी अपनी जगह। ठीक है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सब में अलग अलग जो है वो होता है हुनर। जैसे आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत क्लीन होती है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती है। सो वी कांट कंपेयर टू एनी अदर पीपल विथ द अदर चाइल्ड। ठीक है, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए कंपेयर। सब बच्चे अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट है। सब बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है जो उनको स्पेशल बनाती है दूसरों से। सो यू ऑल आर स्पेशल। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। और हाँ, जब आप स्कूल आते हो तो आप एक दूसरे से या कुछ सीखते भी हो, बहुत कुछ सीखते हो नया। Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write। और आप ही जैसे वो बच्चे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर वो भी स्कूल जाते हैं आपकी जैसे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम। और उन स्कूलों में जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते या जो देख नहीं सकते, वो भी पढ़ने जाते हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनके जो साइन लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। साइन लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू द साइन लैंग्वेज। जो मैंने आपको ABCD वाली साइन लैंग्वेज बताई है, वो साइन लैंग्वेज बोलते हैं उसे हम। वो बच्चे उन साइन लैंग्वेजेस के द्वारा पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं साइन लैंग्वेज के द्वारा वो सीखते हैं। Let us read about the child who cannot hear yet who can do many things। चलो अब हम उस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो बच्चा सुन नहीं सकता। ओके, बट वो बहुत सारी चीज़ें और कर सकता है। जो दूसरी चीज़ें होती है वो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है।
Let's read about it. See, I have a sister. My sister cannot hear. ठीक है, I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. ठीक है, तो एक बहन ने बोला था कि मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है, वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती. डेफ का मतलब होता है सुनना. ठीक है, वो सुन नहीं सकती. शी इज़ स्पेशल. और ऐसे बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी सिस्टर लाइक माइन. और काफ़ी सिस्टर्स, काफ़ी बहनें ऐसी है, काफ़ी लोगों की बहनें ऐसी है जो सुन नहीं सकती है. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. और मेरी जो बहन है वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है. शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग चॉर्ड्स. और उसे मतलब बहुत अच्छा लगता है जो पियानो जब वो बजाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उसे. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. बट वो मेरी जो बहन है वो कभी भी गा नहीं पाएगी. पियानो तो बजा लेती है वो बहुत अच्छे से, बट वो गा नहीं पाएगी. शी कैन नॉट हियर द ट्यून. और वो जो बजाती है वो सुन भी नहीं सकती, वो खुद भी नहीं सुन सकती. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ मंकी बार्स. उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है करनी. नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम. अब मेरी जो बहन है वो मेरे साथ स्कूल भी जाती है और मेरी मम्मी जो है उसे लिप रीडिंग करना घर पे सिखाती है कि जो लोग बोलते हैं उसे आप कैसे समझोगे. लिप्स के मूवमेंट्स को पढ़ना. द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज. और जो हमारे जो टीचर्स जो स्कूल में हैं या जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं हर वर्ड जो वो कहती है. लाइक सिस्टर और वाटर और थम. और जो वो थम से एक्सप्रेशंस करती है या वर्ड्स के द्वारा जो वो कहना चाहती है वो सब समझ नहीं पाते हैं. आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे. मैंने अपना सन ग्लासेस जो है वो कल पहने थे. द फ्रेम्स वेयर वेरी लार्ज. और जो फ्रेम था वो बहुत बड़ा था. द लेंसेज आर वेरी ब्लैक. और लेंस भी जो थे उसके वो बहुत काले काले थे. माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक. और मेरी जो बहन है उसने वो सन ग्लासेस वो हटा लिए थे और जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसने वो हटा दिए थे. वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज. और वो मेरी आंखों में देखने लग गई. पता नहीं वो मेरी आंखों में देख के क्या बोलना चाह रही थी. Through this story, it can be discussed that we have different abilities by incorporating the children's own experiences. Sensitivity towards this issue can be enhanced. Okay? So सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे स्पेशल होते हैं. सब में अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, कैपेसिटीज़ होती है. सब अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं. Now let's come to another page. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their faces and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को समझ जाते हैं. जैसे आप उनके सामने अगर स्माइल करोगे तो वो भी आपको देख के स्माइल करेंगे. बट आप अगर उनके सामने ट्राई करोगे, रोओगे, तो वो भी आपको देख के उदास से हो जाएंगे और रोने लगेंगे. बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपको देख के समझ जाते हैं और देख के भी आपकी लैंग्वेज समझ जाते हैं. ऑब्जर्व द चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? ओके, 6 से 8 महीने के बच्चे जो आपके घर के आसपास या आपके घर में होते हैं, आप उनको देखो और ये देखो कि वो मतलब कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे भूखे होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं. ऑब्वियसली क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे? रोएंगे. ठीक है, तो वो अपने एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दिस आर. दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ. यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड. अब देखो बच्चों, यू आर हैविंग दिस फेस इन दिस पेज. व्हाट यू हैव टू डू, ये फेस आपको दिया हुआ है, बट आपको ये रीड करके फिर आपको बताना है कि ये कैसा फेस है.
बनाना है इस फेस को। ओके, दिस इज़ आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, जो उसका जो फेवरेट टॉय था, खिलौना था, वो गिर के और टूट गया। ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गया। हाउ विल हिज फेस लुक, अब बताओ इसका फेस कैसा होगा। जब आपका खिलौना टूट जाता है तो आपका जो फेस होता है वो कैसा होता है, खुशी वाला होता है या फिर दुखी वाला होता है? ऑब्वियसली दुखी वाला होगा ना, आप सैड हो जाओगे। तो आपको ये सैड फेस बनाना है, सैड फेस। लेट मी शो यू द सैड फेस। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, देन आई विल शो यू ऑल द पिक्चर्स, expressions. Okay, so students, this is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? अब बच्चों, ये जूली है, इसकी छोटी जो सिस्टर है वो कल ही बॉर्न हुई है, यानी कल ही पैदा हुई है वो। अब बताओ, ये बहुत एक्साइटेड है। हम होते हैं ना कई बार बहुत एक्साइटेड, है ना, जिज्ञासा, देखने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा जो रहती है, तो वो बहुत एक्साइटेड है उसे देखने के लिए। ठीक है, तो अब उसका फेस कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली एक्साइटेड वाला। ओके, जस्ट वेट, आई विल शो यू ऑल द पिक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यामिनीज मदर। While Yamini was taking out the bottle of the pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. यामिनी जो है, यामिनी की मम्मी जो है वो बॉटल निकाल रही थी पिकल की किचन से। ठीक है, और जो बॉटल थी वो उसके हाथ से छूट गई और टूट गई, क्योंकि वो कांच की थी। तो उसका जो फेस होगा वो कैसा होगा? ऑब्वियसली शॉकिंग वाला होगा ना, तो हमें शॉकिंग वाला फेस बनाना है। यस, दिस इज़ रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, और खेलते खेलते उसके सामने एक कुत्ता आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस लुक? ओके, ठीक है, तो कुत्ता जब सामने आ जाएगा तो उसका जो फेस होगा वो कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली डरने वाला ना। तो मैं बताती हूँ अब आपको फेस के लुक्स। सी बच्चों, फर्स्ट फेस इज सैड फेस, सेकंड फेस इज एक्साइटेड फेस, एक्साइटिंग जिसे हम बोलते हैं। ओके, नाउ सी, दिस इज थर्ड फेस एंड दिस इज फोर्थ फेस। सो यू कैन ड्रॉ इट इन योर टेक्स्ट बुक, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। See students, first of all write in your notebook chapter number 7 saying without speaking. Don't forget to mention today's date. आज की डेट लिखना मत भूलना, 25/7/2020. Now let's start. Select the best option. Persons who can talk through actions are, जो लोग actions के थ्रू बात करते हैं वो कौन से होते हैं? Deaf, dumb, both और none of them. Deaf मतलब जो सुन नहीं सकते, dumb, deaf and dumb दोनों होते हैं। ठीक है, now see in second question, in dash the hands and face are used to convey feelings. ओके, डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग या वॉकिंग। ऑब्वियसली डांसिंग में आपके जो फेस और जो हैंड्स होते हैं वो दोनों यूज़ होते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सो डांसिंग इज द आंसर। डेफ एंड डम persons understand what another person is saying by watching them, listening them, speaking them or studying their lips movement. ओके, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, वो लोग कैसे समझते हैं? वो लोग लिप्स के मूवमेंट को, ओके, जो देख सकते हैं वो तो लिप्स के मूवमेंट को, जो नहीं देख सकते वो तो लिप्स के मूवमेंट को नहीं देखेंगे, बट जो लोग हमारे लिप्स के मूवमेंट को देख सकते हैं वो लिप्स के मूवमेंट के थ्रू हमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ चाइल्ड फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन ही विल बी वेरी सैड। ओके, जब भी आपका टॉय नीचे गिर जाता है और टूट जाता है तो आपको बहुत दुखी होते हो ना आप, सो इट विल बी सैड।
Now see students, question number 5. Deaf and dumb children are taught in साइन लैंग्वेज. मैंने आपको बताया था साइन लैंग्वेज, मैंने आपको साइन लैंग्वेज आगे दिखाई है फर्स्ट इन द बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन. ओके, तो उसे हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज. वो लोग किसके थ्रू बात करते हैं? साइन लैंग्वेज. स्कूल में भी उनके क्या चलती है? साइन लैंग्वेज. राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. चिल्ड्रन हु आर 6 month old express themselves by crying. जो 6 महीने के बच्चे होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को? रो के. ऑब्वियसली ट्रू, वो बोल तो नहीं सकते हैं ना, तो वो रो के ही करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस. अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स विल बी एक्साइटेड ऑन सीइंग बिग डॉग. जब किसी बच्चे को डॉग से डर लगता है तो क्या वो उसको देख के एक्साइटेड होगा? हाँ, नो, वो एक्साइटेड नहीं होगा, वो तो डर जाएगा उसे देख के. तो इट विल बी फॉल्स. इन स्कूल्स वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. क्या हम स्कूल में जब आप स्कूल में आते हो तो अपने दोस्तों से नई नई चीज़ें, नई नई बातें सीखते हो कि नहीं सीखते हो? ऑब्वियसली ट्रू. जूलीज लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे. शी इज़ वेरी एंग्री. तो जूली की जो सिस्टर थी वो कल पैदा हुई थी और वो जो जूली थी वो बहुत एंग्री हुई थी, बहुत गुस्से में आई थी. अरे नहीं, वो तो बहुत एक्साइटेड हुई थी उसे देखने के लिए. सो द आंसर विल बी फॉल्स. माई डेफ सिस्टर विल नेवर बी एबल टू सिंग वेल बिकॉज शी कैन नॉट हियर द ट्यून. मेरी जो बहन है वो कभी गा नहीं पाएगी क्योंकि वो कभी सुन भी नहीं पाती है ट्यून. ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि जो उसकी बहन थी वो ना तो गा पाती थी ना सुन पाती थी. तो ट्रू. Now let's come to the question answers. Answer in one word or one sentence. In this poem or in the poem, I have a sister. My sister cannot hear. What does the sister like to do? The sister likes to play piano. हमने क्या पढ़ा था? जो बच्ची सुन नहीं सकती थी उसे क्या पसंद था? उसे पियानो बजाना बहुत पसंद था. Second question. In the poem, how does her mother like her sister at home? Help her sister at home. कैसे उसकी मम्मा उसको हेल्प करती थी? किस चीज़ में हेल्प करती थी? The mother helps the child to learn lip reading at home. उसे जो लिप्स के मूवमेंट्स थे वो पढ़ना सिखाती थी कि लिप्स के मूवमेंट्स कैसे पढ़ते हैं या लिप रीडिंग कैसे करते हैं. In the poem, what words spoken by the deaf sister are not understood by others? जो सुन नहीं सकती थी उस बच्ची के द्वारा ऐसे कौन से वर्ड्स होते थे जो दूसरे समझ नहीं पाते थे? वर्ड्स लाइक सिस्टर, वाटर एंड थम. तो वो जो वाटर और थम वाले जो एक्सप्रेशंस करती थी वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते थे दूसरों से या उसके टीचर से. इन द पोएम, व्हाई डिड हर सिस्टर मेक हर टेक ऑफ द सन ग्लासेस व्हेन शी स्पोक? आवर आइज से अ लॉट अबाउट आवर फीलिंग्स. हम जब भी कुछ कहते तो हमारी जो आंखें हैं वो ऑब्वियसली फीलिंग्स जो है वो दिखा देती है. जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी आंखें चमकती है. जब हम ज़्यादा उदास होते हैं तो आंखें जो है वो एकदम उदास वाली होती है. और जब हम रोते हैं तो रोने वाली आंखें होती है कि नहीं होती है? तो आंखें जो है वो बहुत कुछ कहती है. लिटिल सिस्टर मेड हर टेक ऑफ द सन ग्लासेस व्हेन शी स्पोक सो दैट शी कुड सी इन हर आइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स. उसने इसलिए अपनी सिस्टर की आंखों से सन ग्लासेस हटाए थे ताकि वो अपनी सिस्टर की आंखों में एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स देख सके और उनको समझ सके कि वो क्या कहना चाह रही है. क्योंकि लिप रीडिंग तो उसे आती थी. ओके, तो वो आंखें भी देख के पहचानना चाहती थी, फीलिंग्स पहचानना चाहती थी. वाई आर वी ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज? हम सब लोग क्यों स्पेशल हैं अपने अपने जो वेज है उनमें? वी ऑल आर गुड एट सम और अदर थिंग दैट. THAT. जस्ट करेक्ट इट स्टूडेंट्स प्लीज़. दिस इज़ मिस्टेक इन प्रिंटिंग. यहाँ पे होगा दैट. THAT. दैट. ठीक है, प्लीज़ इसको दैट कर लें काट के. दैट. ओके, दैट इज़ वाई वी ऑल आर स्पेशल इन आवर लैंग्वेज. इसीलिए हम अपनी लैंग्वेज में बहुत स्पेशल हैं क्योंकि हम सब किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं. ओके, तो हम सभी स्पेशल हैं. सो स्टूडेंट्स, now let's come to the faces or smile. Match the pictures of faces in column 1 what they are feeling in column 2 by drawing lines and by writing numbers. You can also write numbers. So students, first picture is
ओके, फर्स्ट पिक्चर क्या है? सरप्राइज्ड। जब भी हम ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के। सेकंड पिक्चर सबको पता चल रहा है देख के, इट इज़ सैड, ठीक है, जब हम दुखी होते हैं। थर्ड पिक्चर जब हमें डर लगता है, एफ्रेड। फोर्थ पिक्चर हाँ स्माइली, दैट इज़ हैप्पी, बहुत खुश। फिफ्थ पिक्चर एक्साइटेड, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना किसी चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए। सिक्स्थ पिक्चर कंफ्यूज्ड, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो दिस इज 6। आई होप आप सभी ये ड्राइंग्स बहुत अच्छे से करेंगे, because you all are expert students. Work in your EVS notebook in good and neat handwriting. And don't forget to like, share and subscribe. That is, press on the bell icon. So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.